हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे और अच्छे लर्नर की तरह हमेशा लर्निंग करते रहोगे, क्योंकि यही हमारी एक असली अर्निंग होती है बच्चों। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस बच्चों आपके जो है प्राइमरी आपके जो क्लासेस होते हैं वहाँ से ही आप लोगों को सिखाया जाता है। प्राइमरी जो आप एजुकेशन लेते हो वहाँ से ही आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस के बारे में बताया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, एक नज़र हम डाल देते हैं। हैव ए लुक and it is just a one important notice for all of you. What do you mean by transformation? So have a look or look at this. One of the hallmarks of an effective, interesting writing style is fluency, the ability to express the same idea in different ways using a variety of the sentence structures. So now we are going to learn one definition. Transformation is a method of expressing the same idea, meaning or concept in different grammatical forms. When sentences are transformed from one type to another, their essential meaning doesn't change, but the range and variety of the sentence forms and structure reduce the monotony of a repetitive style. Okay, so this one is the definition, and this was the definition. You should always learn it. And now we are just looking another things about transformation of the sentences. Transformations could be based on structures like you can see simple, compound, complex, or complex compound, or it might be based on meaning like descriptive, declarative, interrogative, imperative, exclamatory. Okay, so we will have some examples related to these transformation of the sentences and various types of the sentences. So now please just read the following sentences carefully. They all express the same idea. So which are those sentences? Let's see. First one, A. Rita is an excellent swimmer. This one is the affirmative, declarative, simple sentence. Rita is the girl who is an excellent swimmer. Affirmative, declarative, complex sentence. Number second, isn't Rita an excellent swimmer? Affirmative, interrogative, simple sentence. And the last one is, what an excellent swimmer Rita is. Affirmative, exclamatory sentence, and simple sentence. So now you can see the first sentence. Just we have one meaning, that is Rita is an excellent swimmer. We can write it in different forms. So transformation is this, you can see, and you will have a good knowledge regarding the transformation of the sentence. When you will see, you will not need to change the meaning of the sentences. सेंटेंस की जो मीनिंग है ना, वो हमें चेंज नहीं करनी है बच्चों। हम इस सेंटेंस को अलग अलग कई प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रीटा इज एन एक्सीलेंट स्विमर। स्विमर जो है ना, वो एक स्विमर का मतलब होता है जो स्विमिंग करते हैं, वो अच्छी सी एक मतलब एक्सीलेंट, अच्छी नहीं एक्सीलेंट है, उत्कृष्ट मतलब और भी अच्छी, एक्सीलेंट स्विमर है, वो अच्छा सा स्विमिंग कर लेती है। तो यहाँ हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, यह एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, और तीसरा हम बोल सकते हैं इसको सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो हमने इस सेंटेंस को अलग अलग नाम से बोला। अब हमारे पास में कुछ इसी सेंटेंस को हम लोग एफर्मेटिव भी जो है ऑलरेडी, और डिक्लेरेटिव जो ऑलरेडी है, और इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहाँ पे ये चीज़ नया है, ठीक है, क्योंकि ये में हम लोग ये तीन ऑलरेडी देख चुके हैं, एफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव एंड सिंपल सेंटेंस। अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, वो यहाँ आप देखोगे तो क्या चीज़ हमने ऐड किया, बस ये चीज़ ऐड किया है ना, जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज हमने और रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है, वो चीज़ ऐड करने से हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सेंटेंस को। जैसे कि रीटा इज़ द गर्ल हु इज़ एन एक्सीलेंट स्विमर, यहाँ पे हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हैं। फिर इसी सेंटेंस को हम लोग क्या बनाएंगे, इंटरोगेटिव में, ठीक है, क्योंकि सिंपल में हमने देख लिया और एफर्मेटिव में भी देखा। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने पहले भी बोला था कि WH फ्रेमिंग क्वेश्चन या फिर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब HV, इनको यूज़ करेंगे हम लोग
तब हमारा जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव में मतलब बन जाता है। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आप देख सकते हो, इजंट रीटा एन एक्सीलेंट स्विमर। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। फिर हम इसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बना सकते हैं जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। ठीक है, जैसे व्हाट एन एक्सीलेंट स्विमर रीटा इज। तो यहाँ पे एक सेंटेंस को हमने डिफरेंट टाइप में या फिर उसके हमने उसको क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। तो यही चीज़ आज हम हमारे इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस क्या होता है। तो बच्चों, मैं यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोग इसी लेक्चर को आज मैं बेसिक से और बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम और डाउट नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ में इस वीडियो को देखोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे और कितने टाइप्स में ये डिवाइड होते हैं। काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। ठीक है, सिंपल की बात करेंगे और इसको हम डालेंगे किसमें, सिंपल टू कंपाउंड में। अब बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसका हमारा एक वीडियो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। उसमें आप लोग देख सकते हो अच्छे से कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है एंड कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अब हम लोग जो आज सीखने वाले हैं वो हम लोग कैसे सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो आज सीखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखो मेरे पास में एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आप लोगों को। इसको आप देखोगे तो ये सिंपल है। कौन सा, ही इज रिस्पेक्टेड और रेस्पेक्टेड फॉर हिज ऑनेस्टी। अब यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा एक सिंपल सेंटेंस। क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। अब हमें अगर बोला जाए क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में, कि इसको आपको कन्वर्ट करना है या फिर इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, कंपाउंड में, तो आप लोग कैसे लिखोगे। कंपाउंड में आप लोगों को मैंने डेफिनेशन पहले ही दी थी कि आप लोगों को एक वर्ड याद होना चाहिए, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ जो है, इन सब की मैंने अलग अलग मीनिंग भी बताई है। एफ का मतलब होता है फॉर, ए का एंड, नॉर, बट, और, यट और सो, है ना। इन सब की मैंने अलग बताई। और ये है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, तो आज हम लोग इनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। कैसे हम लोग उन्हीं वर्ड्स को जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उनको हम लोग यूज करके इस सेंटेंस को जो सिंपल है कंपाउंड में कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, तो हम लिखेंगे ही इज़ ऑनेस्ट। सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं करनी चाहिए, बस हमारी मीनिंग वही होनी चाहिए। तो यहाँ हम लगाएंगे कोमा और यहाँ पे लगाएंगे एस, जो है हमारा फैन बॉयज़ में, एस फॉर सो। ही इज़ रेस्पेक्टेड। अब ये सेंटेंस ना ही इसकी और जो हमारा सिंपल है, ना ही इसकी मीनिंग चेंज है और ना ही कंपाउंड की। हम लोग यहाँ सिंपल में बोल रहे हैं ही इज़ रिस्पेक्टेड फॉर हिज ऑनेस्टी। अपनी ऑनेस्टी की वजह से उसे रिस्पेक्ट मिलता है। यहाँ पे भी हम लोग वही बोल रहे हैं कि वह ऑनेस्ट है, इसलिए उसको रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारी मीनिंग जो है ना वो चेंज नहीं करनी है हमें। हम अगर सिंपल में लिख रहे हैं तो सिंपल में लिख रहे हैं तो सिंपल में ही होना चाहिए। और सिंपल को अगर आप कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हो, कंपाउंड में डाल रहे हो, तो मीनिंग वो की वो होनी चाहिए। अब हम लोग ये जो चीज़ देख रहे हैं ना बच्चों, इसमें तो हमने क्या चीज़ देखा, सिंपल सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग अ वर्ड। एक वर्ड हमने रिप्लेस किया, या फिर और अ फ्रेज, या तो हम एक वर्ड को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, या फिर कोई भी फ्रेज को हम रिप्लेस करेंगे। इनका रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल टू कंपाउंड में जंप कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, द फ्रेज, यहाँ पे आप इस सेंटेंस में देखोगे ना, द फ्रेज फॉर हिज ऑनेस्टी, कौन सा, फॉर हिज ऑनेस्टी, ये जो फ्रेज है हैज़ बिन एक्सपेंडेड इनटू ए कोऑर्डिनेट क्लोज। इसको हमने कोऑर्डिनेट क्लोज में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सो ये भी आप देख सकते हो, हैज़ बिन यूज्ड
टू इंट्रोड्यूस द क्लोज, इस क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने यूज़ कर लिया। तो यानी कि हम लोग सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं इसके रूल के जरिए। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा यहाँ पे ताकि आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे मैं एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ, आप लोगों को करना है उसको। ये है हमारा सिंपल सेंटेंस और आपको करना है उसको कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहला जो है वो हमारा ये है, सी मस्ट गेट अप अर्ली टू कैच हर फ्लाइट ऑन टाइम। नंबर सेकंड, in spite of his sincere effort, he did not succeed. ओके ये हमारा सिंपल सेंटेंस। और थर्ड नंबर पे एक और सेंटेंस मैं आपको दे देता हूँ, हिज डिसओबीडियंस led to him being punished। ठीक है, अब हमारे पास में ये कुछ सिंपल सेंटेंस है और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इनको आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के यूज़ करते हुए आप ट्राई करो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में। तो आप इसको इस तरह से लिखोगे कंपाउंड में, सी मस्ट गेट अप अर्ली so she can catch her flight on time। सेकेंड वाले को कैसे लिखेंगे हम लोग, इन स्पाइट वाले को, he made a sincere effort yet he did not or didn't succeed। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड वाला जो सेंटेंस है उसको हम लोग कैसे करेंगे, he was disobedient and he was punished। अब बच्चों आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे अलग अलग थॉट्स भी आए होंगे इस चीज़ को देखते हुए। हम लोग बात करेंगे सिंपल टू कंपाउंड में हमने क्या क्या किया है ताकि हम लोग सिंपल टू कंपाउंड कोई भी सेंटेंस जो रहेगा उसको हम बना सकते हैं। यहाँ इस सेंटेंस को आप देखोगे ना, सी मस्ट गेट अप अर्ली टू कैच हर फ्लाइट ऑन टाइम। तो यहाँ पे हमने ये लिखा सी मस्ट गेट अप अर्ली, सो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने ऐड किया, ठीक है। और इस सेंटेंस को हमने दूसरा कुछ चेंजेस नहीं किए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इसको हमने हटा के यहाँ पे ये चेंज कर दिया। सो सी कैन, अब यहाँ पे ये भी चीज़ हमने ऐड की, ठीक है ना, ताकि हमारा जो ग्रामेटिकल जो है ना हमारा सेंटेंस है ना उसके मीनिंग भी बराबर रहे, ठीक है ना, ताकि वो पकड़ सके ट्रेन को, इसलिए उसे जल्दी उठना चाहिए, है ना। तो हमने ये भी चीज़ किए हैं। तो आप लोगों को ये करते हुए आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल टू कंपाउंड में जंप कर सकते हो। दूसरा यहाँ देखोगे सेकंड नंबर पे, इन स्पाइट ऑफ हिज सिंसियर एफर्ट ही डिडंट सक्सीड, ठीक है, तो वो सफल नहीं हुआ अपने सिंसियर एफर्ट करने के बावजूद, है ना।
तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ही मेड अ सिंसियर एफर्ट, मतलब उसने किया ना इन स्पाइट ऑफ हिज सिंसियर एफर्ट, मतलब कि करने के बावजूद भी। तो यानी कि हमने यहाँ पे सेम वैसे के लिए वैसा लिखा कि उसने अच्छा से सिंसियर एफर्ट किया, येट ये जो है ना हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो हमने बोला था फैन बॉयज़ में, तो ये चीज़ हमने ऐड किया यहाँ पे, ही डिडंट सक्सीड। कुछ और चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं हमको। फिर यहाँ थर्ड वाले में देखेंगे हिज डिसओबीडियंस लेड टू हिम बीइंग पनिश्ड, तो ही वाज डिसओबीडियंट, है ना। ये हमारा जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव को भी हमने उसी के अकॉर्डिंग लिखा, क्योंकि इज डिसओबीडियंस मतलब ही वाज डिसओबीडियंट। और फिर हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाया, ही वाज पनिश्ड। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सिंपल टू कंपाउंड में जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड से वापस सिंपल में कैसे जा सकते हैं। अगर हमारे पास में कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंपल टू कंपाउंड में तो देख लिया, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे हमारे पास में अगर ऑलरेडी कंपाउंड सेंटेंस है तो वो कैसे करेंगे। कंपाउंड टू सिंपल, जो चीज़ हमारे यहाँ पे सेंटेंस को कंपाउंड बनाती है उन चीज़ों को हटाएंगे हम लोग, और जो हमारे लिए सिंपल सेंटेंस की जो डेफिनेशन है जो हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपल टू कंपाउंड एंड कंपाउंड टू सिंपल हम चले जाएंगे। या यहाँ देखो एक मैं बात बता देता हूँ इसके बारे में, अ कंपाउंड सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिंपल सेंटेंस बाय चेंजिंग वन ऑफ द कोऑर्डिनेट क्लोज। पहली बात तो है आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट क्लोज को चेंज करना है यूजिंग अ पार्टिसिपल फॉर अ वर्ब, या तो आप पार्टिसिपल का यूज कर सकते हो, और यू कैन आल्सो यूज बाय अ प्रीपोजिशनल फ्रेज और एन इन्फिनेटिव और ए जेरुंड। ये चीज़ें हमने फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब जो हमारा चैप्टर है बच्चों उसमें हमने बात किया था फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, तो उन चीज़ों को यूज़ करके आप लोग सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन in the compound sentence needs to be removed from that sentence when a compound sentence is transformed into a simple sentence। अब जो हमने जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे यहाँ पे, अगर हम लोग कंपाउंड टू सिंपल जा रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस में वापस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या होगा, आपका ग्रामेटिकल एरर बताएगा, है ना। तो ग्रामेटिकल एरर इसलिए बताएगा क्योंकि आप कंपाउंड को कंपाउंड में ही लिख रहे हो, और आपको बोला गया था क्या, कंपाउंड टू सिंपल आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स यहाँ हम देखते हैं। अभी डेफिनेशन हो गई हमारी, मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड सेंटेंस लिखे हैं जो आप देख सकते हो। देखो फर्स्ट वाला है नंबर 1, द कर्टन फेल एंड the people got up to live। ये है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। दूसरा और एक सेंटेंस मैं दे देता हूँ, यू मस्ट टेक स्पेशल क्लासेस और you will or you shall not pass your French exam। नंबर 3 एक और सेंटेंस हम कर लेते हैं, you must not interrupt you must not interrupt the speaker as this is rude, RUDE। अब बच्चों यहाँ पे आपके सामने जो 3 कंपाउंड सेंटेंस दिख रहे हैं, आप लोगों को इसको एग्ज़ाम में मान लो यही आ गया है, आपको सिंपल में इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे आप लोग। हमने बोला कि यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उनको हटाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको यहाँ दिखेगा फर्स्ट वाले सेंटेंस में,
ठीक है। और सेकंड वाले सेंटेंस में आपको यहाँ दिखेगा और थर्ड वाले में कहाँ दिखेगा आपको, यहाँ पे। ठीक है, ये सब हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इन चीज़ को हम लोग रिमूव करेंगे और हम लोग सिंपल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट वाला यहाँ देखो, द कर्टन हैविंग, जेरोन का यूज करेंगे यहाँ पे, हैविंग फॉलन, द पीपल गॉट अप टू लिव। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये पार्टिसिपल का यूज़ करके हमने इसको एक सिंपल सेंटेंस में बना दिया। सो पार्टिसिपल आप जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब है उनका यूज़ करके आप लोग क्या करोगे, कंपाउंड टू सिंपल में जंप कर सकते हो। सेकंड जो हमारा जो है एग्जांपल, उसको हम लोग करते हैं। यहाँ देखोगे, यू मस्ट टेक स्पेशल classes to pass your French एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस हमने बना दिया इसको, और एफर्मेटिव सेंटेंस से हमने क्या कर दिया इसको, एक सिंपल। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा जो थर्ड नंबर है, यू मस्ट नॉट इंटरप्ट द स्पीकर एज दिस इज रूड। इंटरप्टिंग द स्पीकर इज रूड, ये हो गया आपने एक जेरूंड का यूज़ करके। यहाँ पे जेरूंड वर्ब है V1+ing, जो हमने बोला था जेरूंड में हम यूज़ करेंगे। इसको हमने एफर्मेटिव में किया, इसको हमने जेरूंड में किया और इसमें पार्टिसिपल में किया। तो ये इस तरह से हमने क्या कर दिया बच्चों, हमने कंपाउंड टू सिंपल और सिंपल टू कंपाउंड इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मान लो आपके सिंपल में यही हो तो आप वापस कंपाउंड में इस तरह से जा सकते हो। सिंपल ये है तो कंपाउंड में ये कर सकते हो, सिंपल में ये है तो कंपाउंड में ये, और कंपाउंड में ये है तो सिंपल में। इस तरह से आप लोग वापस इसको इन्वर्स यूज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सिंपल टू कंपाउंड एंड कंपाउंड टू सिंपल सीख लिया। अब हमारा आता है तीसरा जो टाइप है, वो है कॉम्प्लेक्स। कैसे हम लोग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो स्पेशल रूल्स ऐसे कुछ है नहीं, बट आप लोगों को कुछ खास बातें ध्यान रखना है। अ सिंपल सेंटेंस कैन आल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय एक्सपेंडिंग अ वर्ड, या तो आपको एक वर्ड को एक्सपेंड करना पड़ेगा, और अ फ्रेज, आप या तो इसको फ्रेज भी एक्सपेंड कर सकते हो इनटू ए सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। आप लोगों को अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबऑर्डिनेट क्लोज, नाउन क्लोज। दूसरी बात एडजेक्टिव क्लोज, और तीसरी जो बात है वो है हमारी एडवर्ब क्लोज। इन तीनों के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं होगा बच्चों तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग हमारा वीडियो जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज है वो चीज़ भी आप ज़रूर देखना, ताकि क्या है कि आपका ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब हम लोग सिंपल सेंटेंस को लेके आते हैं आपके लिए, और आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे सिंपल सेंटेंस को हम लोग सिंपल को कैसे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कुछ सिंपल सेंटेंस आप एग्जांपल यहाँ देखोगे। मैं पहले सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू अराइव शॉर्टली। ये एक हमारा सिंपल सेंटेंस है। दूसरा सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे बात कर लेता हूँ, माई सिस्टर a resident of
मुंबई हैज़ जस्ट ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएटेड यानी जो कॉलेज की एग्ज़ाम है वो पास की, ठीक है। अब हमारे पास में बच्चों यहाँ पे दो चीज़ें हैं और दो सेंटेंस है, ठीक है। अब हम लोग उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि क्या है वो चीज़ें और किस तरह से हम लोग सिंपल सेंटेंस को, ये हमारा सिंपल है, इसको हमें करना है कॉम्प्लेक्स में, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स टू सिंपल भी करेंगे, वो ये भी ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसमें हमने तीन बातें बोली थी। ये थी कि एक तो सबऑर्डिनेट नाउन हमारे पास में होना चाहिए, एडजेक्टिव क्लोज भी होना चाहिए या फिर एडवर्ब क्लोज होना चाहिए। मतलब अगर नहीं है कोई बात नहीं, आपको पहचान होनी चाहिए इनकी। उनको हम लोग क्या करेंगे, बस एक्सपेंड करेंगे और उनके यूज़ करते हुए हम कॉम्प्लेक्स में कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसको मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट, बैटरी लो है कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे एडिट के थ्रू, ओके। दैट ही विल अराइव शॉर्टली। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज, ठीक है। सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज को यूज़ करते हुए हमने इसको एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बना दिया। फिर यहाँ आप देखोगे तो दूसरा सेंटेंस जो हमने दिया था उसमें हम लिखेंगे माई सिस्टर who lives in Mumbai has just graduated। यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें हमने यहाँ पे क्या सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ करके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनका यूज़ करते हुए बच्चों यहाँ पे आप लोगों को मैं तब तक थोड़ी एक और जो इम्पोर्टेंट बात है मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना बच्चों, तो ये जो चीज़ है ना यहाँ पे कहाँ पे, ये इट इज़, ये जो चीज़ लिखा है ना, इनके ऊपर ध्यान देखोगे तो ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज है। इसको हमने किया यूज़, इससे हमारा क्या बन गया, एक तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। फिर आप लोग यहाँ देखोगे दैट, ये वर्ड कहाँ से लिया, तो ये भी इसका ही रिलेटेड है और ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। ये हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको रिलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पे जो हमारा सेकंड है इसमें माई सिस्टर, तो माई सिस्टर हु लिव्स, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ किया, ठीक है। और ये हमारा ये भी क्या है, एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके हमने रिलेट कर दिया उसको। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन, सबऑर्डिनेट जो सारे हैं, ये सारे रिलेटिव जो हम बात कर रहे हैं ना, रिलेटिव प्रोनाउन, ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग क्लोज ही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इन चीज़ों का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, वो आप देखो, डिस्पाइट द हैवी रेन ऑल स्टूडेंट्स अटेंडेड द स्कूल। डिस्पाइट द हैवी रेन मतलब हैवी रेन होने के बावजूद सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना स्कूल में आए। सो डिस्पाइट द हैवी रेन ऑल द स्टूडेंट्स अटेंडेड द स्कूल। तो हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे करेंगे, अब आप लोग ट्राई करो इसको, 1 2 एंड 3। चलो अब मैं बात करता हूँ उसमें एडवर्ब क्लोज लगा के। यहाँ देखो, दो इट रेन्ड हैवीली, THOUGH, दो इट रेन्ड हैवीली, हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ऑल द स्टूडेंट्स अटेंड द स्कूल। बस हमारा ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पे हम लोग सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, उसमें हमारा जो सेंटेंस है कंजक्शन वाला जो हमारा एक वीडियो है, उसमें आप लोगों को सबऑर्डिनेटिंग क्लोज क्या कौन कौन से हैं उन सब की लिस्ट दी हुई है, ठीक है। और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज के बारे में, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज कौन से हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से हैं, इन सब के बारे में हमने
कंजक्शन वाले चैप्टर में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हम लोग ये चाहते हैं बच्चों कि आप लोग अच्छे से लर्निंग करो, तो आप सारे वीडियो देखोगे तो उसमें आपको अच्छी सी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल के बारे में। तो आज हम लोग अब इसके बारे में देखेंगे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स देखा, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी हम लोग सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है, जो हमने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जो रूल्स फॉलो किए थे, अब उसको उल्टे कर देना है, रिवर्स यूज़ कर देना है उनका। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखोगे। फर्स्ट वन जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सारे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और बाद में उनको सिंपल सेंटेंस में भी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। तो ये जो अभी जो लिख रहा हूँ वो सारे हमारे कौन से होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे कि मैंने लिखा व्हेन ही वाज बोर्न इज नॉट नोन, उसका जन्म कब हुआ वो पता नहीं। ठीक है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज हमने इसमें यूज किया है, नाउन क्लोज, इस वजह से तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर सेकंड नंबर यहाँ देखते हैं, ही स्पेंट हिज वैकेशन इन द टाउन वेयर ही वाज बोर्न। अब ये है हमारा क्या, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें अब हम लोग बात करेंगे, इनको कैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस में डाल सकते हैं। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आप चीज़ों को ये चीज़ सीखना है कि हम लोगों को जो सिंपल सेंटेंस की जो डेफिनेशन है उनको क्या बोलते हैं, अगर वो पता होगा, और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, अगर आपको स्ट्रक्चर उसके पता नहीं है, डेफिनेशन पता नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो आप लोग यहाँ देखो, यहाँ पे लिखते हैं द एग्जैक्ट डेट ऑफ हिज बर्थ इज अननोन। यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा व्हेन ही वॉज बोर्न इज नॉट नोन, मतलब उसका जन्म कब हुआ पता नहीं। ये जो चीज़ लिखा हमने सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज यूज़ करके, तो मतलब वही चीज़ हम वापस बोल सकते हैं कि उसकी जो बर्थ डेट है वो पता नहीं है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं द एग्जैक्ट डेट ऑफ हिज बर्थ इज अननोन। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसको भी कैसे लिखेंगे, मीनिंग चेंज नहीं हो रही बच्चों, स्पेशली नोटिस इसके ऊपर होना चाहिए आप लोगों का कि मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फिर हम लोग जो सेकंड है हमारा ही स्पेंट, तो यहाँ लिखेंगे ही स्पेंट हिज वैकेशन in the place of his birth। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। अब ये दोनों चीज़ आप सिंपल सेंटेंस देखोगे, और ये है हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो अब इसमें देखो ही स्पेंट हिज वैकेशन इन द टाउन वेयर ही वाज बोर्न, मतलब जहाँ उसका जन्म हुआ था उस टाउन में उसने अपना वैकेशन स्पेंड किया। तो यहाँ पे भी हम लोग वही बोल रहे हैं, ही स्पेंट हिज वैकेशन इन द प्लेस, और यहाँ पर टाउन बोल सकते हो आप लोग, इन द टाउन ऑफ हिज बर्थ। कोई भी चेंज नहीं करना है आप लोगों को, बस इन दोनों के मीनिंग भी सेम होना चाहिए। इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये चीज़ सीखा है। तो बच्चों अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमारा एक लास्ट और एक टॉपिक है, वो है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड, ये टी बराबर लिखा नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स में हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके बारे में ध्यान रखो। व्हेन अ कंपाउंड सेंटेंस इज
transformed into a complex sentence. The second coordinate clause in the compound sentence is made into the independent clause of the complex sentence. मतलब आपको यहाँ पे अगर कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में करना है तो सेकंड जो हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज है ना, जो हमारे कंपाउंड सेंटेंस में रहता है, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तभी तो हमारा क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स में बता देता हूँ आप लोगों को, 2 एग्जाम्पल, जिससे आपको अच्छा सा इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। फिर आप कोई भी सेंटेंस को जो आपका कंपाउंड होगा उसको आप लोग क्या कर पाओगे, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर पाओगे। यहाँ देखो मैं पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ही wanted some money and he got it। ये है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। दूसरा एक और सेंटेंस कंपाउंड का मैं दे देता हूँ यहाँ पे, he is liar and I can prove it। ये हो गया हमारा दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 कंपाउंड सेंटेंस है जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। अब इनको मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सेल्फ प्रैक्टिस करो और इसको कॉम्प्लेक्स में डालो। तो बस आप लोग, अब आपका टाइम आउट हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ, शायद मुझसे पहले आप लोगों ने कर लिया होगा। वेरी गुड। यहाँ देखो, ही गॉट द मनी that he wanted, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट क्लॉज डाल के एक सेंटेंस को जो कंपाउंड में था उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना बच्चों। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आपको क्या दिख रहा है, ही वॉन्टेड सम मनी, मतलब उसको पैसा चाहिए था कुछ, एंड ही गॉट इट, और उसे मिल गया। तो ये एंड की वजह से कंपाउंड हो गया ये, ठीक है। एक हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फिर हमने यहाँ पे इसी को ही गॉट द मनी, उसको पैसा मिल गया, दैट की जिसका ही वॉन्टेड, जिसका उसको ज़रूरत थी, जिसकी उसको ज़रूरत थी, है ना। तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, एक रिलेटिव प्रोनाउन बना के हमने इसको यूज़ कर दिया। हालांकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सबऑर्डिनेट यूज़ कर दिया। इसका सबऑर्डिनेट क्लोज लगा के और इंडिपेंडेंट क्लोज लगा के हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, ये ध्यान रखना। फिर सेकंड वन में देखो, यहाँ पे ही इज़ लायर एंड आई कैन प्रूव इट। यहाँ पे करेंगे आई कैन प्रूव दैट ही इज़ अ लायर, मतलब वह एक झूठा है या फिर लायर है, और मैं ये साबित कर सकता हूँ, तो मैं ये साबित कर सकता हूँ कि वह एक झूठा है, इज़ लायर, ठीक है। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हो गया। तो बच्चों ये वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस सीखा है। हम आगे हमारे जो भी वीडियो आएगा उसमें हम लोग और भी बेहतरीन ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और आप लोगों को अच्छी हेल्पफुल ये वीडियो मेरी साबित होगी। और जो बच्चों जो डेली बात बोलना है मुझे वो यही है, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।